May I come in, sir? Come in. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning. Have your seat. Thank you, sir. You are Simran. Yes, sir. Simran, if you could introduce yourself briefly. Sir, my name is Simran. I have been born and brought up in Jhajjar district of Haryana. I have done my schooling from there. Post that, I did my graduation in BSc Honours Mathematics from University of Delhi. And post that, I started preparing for civil services examination. When did you do your graduation? Sir, 2017. 17. So, ever since then, you have been preparing for competitive exams only, or you did something else also? Yes, sir. Meanwhile, sir, I was doing content writing as a freelancer Okay. in the COVID time. Okay. Freelancer, specifically with any one or two companies or organization you can name for whom you had written the content? Yes, sir. Sir, I have written the projects for Flambient company. I wrote their product description for their website. Also, sir, I have written many of the websites content which we see on their websites online. If you could specify one or two such websites. Sir, I'm not able to recall right now. I will go and find. You did your schooling from this RED School. Yes, sir. What is the full form of RED? Sir, it is Rural Education Development. Okay, the name of the school is Rural Education Development. Yes, sir. It is government school or private school? Sir, it is private school. Private school. Yes, sir. Okay. And then you did graduation in maths honors. Yes, sir. Okay, so after doing graduation in maths, which is quite I would say, sort of a difficult subject, you could have continued on PG or something. And what made you change your mind to come to civil services? Yes, sir. So I had the option of pursuing masters from Hansraj College, University of Delhi. I had got the admission. But sir, I always wanted to prepare for civil services examination, and I knew that 2 years, investing 2 years in a degree, and after that preparing might take a long time for me to come here. Okay. So in mathematics, you must have studied Laplace transform and Fourier transform. Yes, sir. What's the difference between the two? Are you totally out of touch with mathematics? Yes, sir. As you can see the time. Seems. Sir, I will read upon it. Okay. Because that is your basic graduation subject. You have also mentioned that you are quite interested in watching TED Talks and Josh Talks. Yes, sir. So, can you just share with us one or two such talks which you watched recently? Yes, sir. So, the one speaker which inspires me the most in TEDx is Miss Pooja Chopra. She has been former Miss India. She was once an abandoned girl, and she rose to that platform. So I consider it as her achievement, and she motivates me a lot. Okay. How many districts are there in Haryana? So 22. 22. Which is the latest, newest district which was formed? So Charkhi Dadri. Charkhi Dadri. Okay. Why Panchkula is, how this name Panchkula has been derived, or where from it has been derived? So if I'm not mistaken, it is from 5 coops. Kuwa. 5 coop. When? Yes, sir. The wells. Yes, sir. The well to, anyway, are you sure? Sir, if I'm not mistaken, I think. Okay.
Recently, an international summit by the name of COP27 was held. What was the purpose of this summit, where it was held, and what were the highlights? Yes, sir. Sir, it was held in Sharm el Sheikh, Egypt. Sir, Why it is called COP? You know, there are series, and last one was 27th of the series. yes, sir. So, what is COP? Conference of Parties of United Conference of Nations. Parties. Are you sure? Conference of Parties. Yes, sir. I guess. Anyway, so it was, as you were saying, it was held in Sharm el Sheikh. What was the declaration, or what was the final important outcome of this conference? Yes, sir. Sir, it led to the establishment of Loss and Damage Fund. What was that fund named? Loss and Damage Fund. Sure. Yes, sir. Okay. Sir, it is for the developed countries to finance the developing countries in technology and climate finance. Any recent example where such a need arose at the international level, and that kind of finance under the aegis of United Nations has been organized? Are you aware of any such initiative in the recent past? Just maybe about 10 days back. So 10 days back, it has happened. So 10 days back. No, sir, I am not able to recall right now. Okay. What is the importance of today, this day? Sir, 26th of January. What is 26th of? Sir, it is on this day, 1950, that India became a republic. We adopted our constitution. 1950. Yes, sir. Sure. Yes, sir. Okay. And where is the main ceremony held to celebrate this Republic Day? Sir, Kartavya Path. Kartavya Path. Good. On this day, many personalities and people are honored with various awards. Yes, sir. And Padam Vibhushan is one of them. Okay, in Padma series, Padam Vibhushan is the highest one. Yes. Name any 5 personalities who have been honored today. Sir, one famous personality is the founder of this party who died recently. I'm not able to recall his name right now. Yadav, famous Yadav leader from UP. Father of Akhilesh Yadav. Sir, I'm not able to recall his name. Okay, no problem. 4 more. Sir, on this day today only. Yeah, I mean, awards were announced yesterday, Yes, but sir. it is to commemorate this today, 26th. Yes, sir. They appeared in newspaper today. Yeah, they have appeared in newspaper. They came in the news last night. Sir, I'm only able to recall one right One now. only. No problem. Okay, Simran, you are from Jhajjar? Yes, ma'am. Okay. Can you tell me something about significance and history of Jhajjar? Ma'am, located in the vicinity in the NCR region, like you want British history or which history? No, whatever. Historical background of Jhajjar Okay, ma'am. and significance. Ma'am, mainly Jhajjar is famous for the large number of youth joining in the army and paramilitary services. And it has derived its name from Chhajju Kisan. Yes, ma'am. And ma'am, it was a part of British rule in the modern period in history. And ancient, I'm not able to recall right now, ma'am. Okay.
You are from Jhajjar, so you must know these things, these facts. I'll read upon it, ma'am. Yeah. Let me check it. Okay. Which Indian film's song has been shortlisted for the Oscar? Natu. From which film? RRR. Who is the producer of this film? Don't know. his name. Rajamouli. Okay. Is there any National Mathematics Day? Yes, ma'am. It's on 22nd December. Yeah. So it was celebrated in 22? 22nd December, ma'am. Yeah. In 22? Yes, ma'am. 22? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. It is to commemorate Sir Ramanujan's birthday. And it has been named as National Mathematics Day. Okay. Do you today we want to know about your leadership experience, if any, and on the basis on the ground of you give the overview situation, what is it, and the challenges you faced, and the end result. Okay, ma'am. Ma'am, I have been a part of the FEST organizing committee in Department of Mathematics in my college. So we were organizing this FEST, part of the FEST program, which was Treasure Hunt, and in that we were the main organizers, and the participants were asked to bring some. We gave them a list of items which were supposed to be brought by them, but then the list got leaked at the last moment, and they came to know what are the articles. So this led to a kind of a cheating would have happened. So we changed that in the last moment so that the cheating could be avoided. Also, ma'am, I was also the hostel head girl in my hostel where I stayed. Ma'am, there were a lot of conflicts among girls on petty issues, so I was able to solve them amicably. And ma'am, I was also NSS volunteer in my college. There's one scheme, Beti Bachao, Beti Padhao. Yes, You know about it? Yes, What ma'am. is it? Ma'am, to stop female infanticide and to educate the girl child. It is. The scheme has been revamped recently. Yes, ma'am. What has been included? Ma'am, I think it is to finance the higher education of women and girls, if I'm not mistaken. Any other? Not able to recall right now. Future. You should know this. Okay, ma'am. I will read. You tell me, in your life, you have met someone. You have met someone, and you thought about, okay, I want to be like that. Might be your teacher, might be your boss, might be anybody else. But the thought immediately came into the mind. No, I want to be like that. Okay, ma'am. Ma'am, so once we had a visit of Ira Singhal, ma'am. She's an IS officer in our college, and she had come to deliver a lecture. So on the day of, I think, national, some day was there related to persons with disabilities. So she inspired me a lot. She motivated me to prepare for civil services examination. She was like the main reason I wanted to be in the civil services. Okay. So, ma'am, Have you thought about, okay, I want to be like that, like her? Yes, ma'am. What did you like about her personality? Ma'am, she spoke with courage. She was very humble. She was very down to earth. While she spoke to us about the strategy, we asked her about the strategy to prepare for civil services examination. She was so humble. She looked like a leader. So, ma'am, she inspired a lot. Okay. Simran, how would you differentiate Punjab economy from the Haryana economy? What are the differences? Ma'am, recently there has been it has been observed that Punjab is high on debts,
there are a lot of debts on Punjab economy, and also, ma'am, the fiscal deficit targets are also getting breached in Though Punjab. Punjab was the richest state all over India. Yes, ma'am. Yeah. Ma'am, it may be because of the freebie culture in the shorter term, which affects the economy in the longer term. Don't look at me. You just explain. Okay, ma'am. And this is the basic difference. While Haryana has able to fiscal consolidate itself, and it has the largest per capita income in the country, its main contribution to the economy comes from services sector, and also significant contribution from the agriculture sector. Okay. You write poetry? Yes, ma'am. What have you written? Ma'am, I have written, but I am not able to recall right now. But I can. We want to today listen 2 lines of your poetry. Okay, ma'am. Ma'am, some motivational kind of, Anything which you have written. which I have Which written. originally you have written. मैम, मेरी ज़मीं तुमसे गहरी रही है, मेरा आसमां तुमसे ऊंचा होगा. This is what I have written. It's okay. Can you please? सिमरन, आप झज्जर कैसे पहुंचे? Sir, You have roots there. पहले पुराने लोग वहां सेटल हुए थे Yes, sir. पाकिस्तान से आने के बाद. yes, sir. मेरा फादर क्या करते हैं? Sir, he is a clerk in district court Jhajjar. डिस्ट्रिक्ट Courts Jhajjar. कोर्स. तो झज्जर का बैकवर्ड होने का क्या वजह है? What is the reason for any Hindi, English, whatever you learn? Sir, Jhajjar backward in what sense, sir? Socially, economically, सब चीज़. Every way, economically mainly backward, Yes, sir. but economically. educationally also it is backward. Yes, sir. And infrastructure wise also it is backward. Only now एम्स वगैरह वहां पर आ रही हैं. Yes, sir. एम्स ही आया, और तो कुछ नहीं आया. क्या आया वहाँ? Yes, What sir. is the new development, new establishments coming up in Jhajjar? सर एम्स ही है भाड़सा में जो बना है हाँ. अभी. कोविड टाइम में वो ऑपरेटिव था. सर सोशली तो यूं बोल सकते हैं, क्योंकि एक तो सर पेट्रियार्कल जो माइंडसेट है ना सर, वो क्योंकि दिल्ली से बहुत पास होने के बावजूद भी वो गया नहीं है अभी. तो सर मतलब ये वाली चीज सोशली बैकवर्डनेस को पॉइंट करती है. और सर इकोनॉमिकली सर ज्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में अगेंस्ट है. ऑल्दो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सर्विसेज की तरफ, लेकिन सर अभी भी एग्रीकल्चर में है बहुत सारी पॉपुलेशन. और एग्रीकल्चर में सर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारी होती है उसकी वजह से. और सर इंफ्रास्ट्रक्चर सर अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है. रोड्स ठीक है हम सब. यस सर, रोड्स तो ठीक है. कुंडली मानेसर वाला जो हाईवे है वो भी पास ही है. और सर और भी रोड्स भी बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है. एजुकेशन, कॉलेजेस. सर कॉलेजेस तो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 2-3 ही हैं. एक वो है प्राइवेट है, एक गीतम करके एक प्राइवेट कॉलेज है कबलाना में जो इंजीनियरिंग और ये सब कराता है. बट सर कॉलेज की स्कार्सिटी है तो लोग बच्चे दिल्ली जाते हैं पढ़ने. मैथ्स के अलावा आपने क्या क्या पढ़ा? Which subjects you have studied at मैट्रिक और +2 और Plus two. ग्रेजुएशन लेवल? ऑनर्स के मैथ्स के अलावा भी होगा कोई, बाकी सब्जेक्ट भी होंगे? सर क्रेडिट्स में थे. हाँ, क्रेडिट्स या ऑप्शनल नहीं होते. सर एक ही होता है बस ऑनर्स में, मैथमेटिक्स ही पढ़ना होता है. नहीं सर, 3 सब्जेक्ट मैथ्स के होते हैं और एक क्रेडिट चेंज होता रहता है सेमेस्टर में. तो आपने मैथमेटिक्स क्यों लिया, ऑनर्स क्यों किया? नॉर्मली गर्ल्स डू नॉट लाइक मैथमेटिक्स. थोड़ा सा ट्रेंड अभी चेंज हुआ है, इंजीनियरिंग में भी आने लगी है. एंड दिस इज, मैम शायद साइकोलॉजी बैकग्राउंड से है, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं. बट आई हैव रेड समवेयर कि लेफ्ट राइट ब्रेन का कोई इशू है इसमें, कि गर्ल्स के अंदर मैथमेटिकल स्किल कम होती है. व्हाट डू यू से?
नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। हाँ सर, लड़कियों को थोड़ा मैथ्स पसंद नहीं होता बचपन से सर। मुझे तो शुरू से ही पसंद था सर, मैं तो कॉलेज टॉपर भी थी कॉलेज में, तो सर ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने अपने सीनियर्स भी देखे हैं जो बहुत अच्छा मैथ्स में परफॉर्म कर रहे थे, कुछ तो अभी पीएचडी भी कर रहे हैं। तो जो जितना हम आर मैथ्स या ऑनर्स में पर्टिकुलरली पढ़ते हैं, यस सर। how do you relate it with the real life और practical life और जो भी कुछ हम करते हैं जॉब्स में भी, प्रोफेशनल लाइफ, क्या रेलिवेंस है? कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री और भी जो भी आप पढ़ते हो उसमें ज्यादातर वो हाउ डू यू यूज इट? सर जो अभी रिसेंट ट्रेंड है जो डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स का है, उसमें सर मैथ्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अभी देखने को मिल रहा है। सो जो हम क्रिप्टोग्राफी, सर जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है या क्यूआर कोड्स है, इसमें मैथ्स का रेलेवेंस देखने को मिल सकता है। और सर मशीन लर्निंग और जो एल्गोरिथम्स आजकल जो हमारी इकोनॉमी को गाइड करेंगे और 2-3 साल में, उसमें सर मैथ्स का बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देखा जा सकता है। यू मीन जो मैथ रिलेटेड प्रोफेशंस हैं जिसमें वहाँ यूज है इन जनरल लाइफ में मैथमेटिक्स? सर इन जनरल तो सर मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो सर रियल लाइफ में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का एप्टीट्यूड डेवलप हो सकता है उसको पढ़ने से। बट इज लाइफ 2+2 4 ओनली? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। मीन इज इट अ मैथमेटिक्स, इट्स अ लॉजिक ओनली? नहीं सर। व्हाट एल्स इज देयर इन लॉजिक के अलावा लाइफ में क्या है सर इट इज नॉट लॉजिकल? सर ऐसा बोला जाता है कि 90% जो हमारे साथ होता है और जो 10% हमारा रिएक्शन होता है वो लाइफ है। तो सर लाइफ में तो लॉजिकल नहीं हो सकता सब कुछ, सर्कमस्टांसेस कभी कभी ऑड होते हैं, कभी इवन होते हैं। तो सर सर्कमस्टांसेस भी, इमोशंस भी, जो हमारा मेंटल मेकअप है, यस दैट इज नॉट मैथमेटिकल, वी आर इमोशन ओरिएंटेड ना। तो मैथमेटिक्स के अलावा ह्यूमैनिटीज में आपने क्या पढ़ा है? यहाँ जो वीक पॉइंट है मैंने देखा है आज की नई जनरेशन का या इंजीनियर्स का या मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड के लोगों का, साइंस बैकग्राउंड के लोग, ह्यूमैनिटीज में क्या पढ़ा है? जैसे आप पोइट्री लिख रहे हो, यस सर। पोइट्री बेसिकली इट इज आउटकम ऑफ योर थिंकिंग कि कुछ इमोशंस और थिंकिंग हुई और उसका आपने कलमबंद कर दिया उसको। बट पढ़ने के लिए क्या पढ़ रहे हो? आपने लिखा रीडिंग, क्या पढ़ रहे हो? सर नॉन फिक्शनल बुक्स। What type of? Sir, I have read The Power of Subconscious Mind, The Monk Who Sold His Ferrari, and sir, The Secret Book, और sir, 7 habits of highly effective people. ये वाले सर बुक्स पढ़ी है। और ये ब्लॉग्स कहाँ लिख रहे हो आप? सर मीडियम पे। कौन सा मीडियम? मतलब मुझे आइडिया नहीं है ब्लॉग लिखते। सर मीडियम एक ऑनलाइन बिजनेस ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जो कि अमेरिकन कंपनी ने बनाया है। इसके फाउंडर सर इवान विलियम्स थे। 2012 में इसे फाउंड किया गया था और सर इस पे सब अपने थॉट्स लिखते हैं। कोई लिमिट है वर्ड्स की? नहीं सर। कितना भी लिख सकते हैं सर? 7 मिनट रीड मैक्सिमम है, मतलब जो 7 मिनट्स में रीड हो जाना चाहिए। डू दे पे और चार्ज एनीथिंग? यस सर, ज्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं तो पे होते हैं और मेंबरशिप में भी चार्ज है। ओके, सो एक ही ऐसा मीडियम प्लेटफॉर्म? सर बहुत सारे हैं, वर्डप्रेस है और भी है सर, एक ही तो नहीं है। ये टेडएक्स कौन करता है? ये होल्ड टॉक्स? सर ये और एक टेड है, एक टेडएक्स है। यस सर। है सर ऐसे हैं, मतलब 2-3 है इस तरह की। यस सर। सर मैंने तो ज्यादा टेडएक्स ही देखे हैं। तो कौन करता है ऑर्गेनाइज? इज इट इंडियन और आउटसाइड? सर आउटसाइड ही है। ओके, चलिए जी, बस 2-3 चीजें हैं वो मैं जल्दी जल्दी से पूछ लेता हूँ कि एक तो आपके जो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स बन रहे हैं, अब नई नई डिस्ट्रिक्ट, कोई भी सिटी एक सिटी का डिस्ट्रिक्ट है। अब चरखी दादरी में चरखी दादरी के अलावा कुछ नहीं है, झज्जर में झज्जर के अलावा कुछ नहीं है।
क्या है ये, व्हाट इज इट ऑल पॉलिटिकल, इसका कोई यूज है नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल की, इवन डेवलपमेंट्स भी नहीं होती 10-20 साल। यस सर। सर डिस्ट्रिक्ट्स जो बनाए जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनाए जाते हैं ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन हो सके, स्कीम्स अच्छे से लार्जर वेलफेयर हो सके। सर इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है सर, लेकिन सर धीरे धीरे काम हो रहा है अब। तो सर प्योरली पॉलिटिकल तो नहीं है, लेकिन सर थोड़ा बहुत कंपोनेंट हो सकता है उसका। कोई एक डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में बताओ जो डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद डेवलप हुआ हो, मतलब रिमार्केबल डेवलपमेंट हुई हो। सर रोहतक का बोल सकते हैं। रोहतक तो बहुत पुराना है, आई थिंक इट वाज द ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट। सर अभी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं हरियाणा बनने के बाद, ये तो मतलब पंजाब टाइप के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यस सर। पता नहीं सर अभी तो। नहीं वैसे ही जस्ट ये तो रैंडम ऑब्जर्वेशन है कि भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट हुई है। जैसे फतेहाबाद हो सकता है, मुझे तो फतेहाबाद में भी कोई नहीं लगी। फतेहाबाद भी रिसेंट है, बहुत पुराना नहीं है, 10 साल के अंदर का ही है। सर मे भी अभी नए बने हैं, धीरे धीरे हो इसीलिए। ठीक है, थैंक यू। What is your self-assessment about your performance in the interview? सर कुछ चीजों पे पढ़ने की जरूरत है। कौन सी चीजों पे? सर जैसे COP27 जो आपने पूछा था, और सर थोड़ा हरियाणा के बारे में और पढ़ने की जरूरत है। और जैसे मैम ने बोला झज्जर के लिए तो वो जो एरियाज आपके ये जैसे कॉपल है ना, ये तो करंट अफेयर्स है, ये तो लिमिटलेस है। इसमें तो आप कभी भी फिर भी पकड़े जा पदम भी पूछेंगे। एक तो न्यूज़पेपर ना सभी देखा मैंने, स्टूडेंट जो भी कैंडिडेट है 11:30 बजे हुए हैं, तो न्यूज़पेपर खासतौर पे इंटरव्यू के दिन तो पढ़ा हुआ होना ही चाहिए। सर पढ़ा था जो भी याद नहीं ये क्वेश्चन पदम विभूषण के लिए नहीं पूछा इन्होंने, ये जानने के लिए पूछा है कि क्या आप न्यूज तो डेली होती है ना। यस सर। Keep yourself updated. अब मुलायम सिंह यादव का नाम ही आपको। हाँ। यस सर वो नाम ही एकदम से। एक नाम सिर्फ वो भी सर 2 ही थे आज न्यूज में, आज 2 न्यूज में थे जो फेमस थे। वो सर पढ़े थे, अभी भूल गई, अभी से रास्ते याद नहीं बहुत सारे थे। सुधा मूर्ति थी उसमें, मुलायम सिंह यादव थे, और 4-5 इम्पोर्टेंट जो बड़े प्रोमिनेंट नाम है, मतलब अक्सर न्यूज में आते रहते हैं। ये भी नहीं कि कोई नए नाम वाला सडन आए थे। yes, मतलब न्यूज़पेपर तो ये टेस्ट करने के लिए किया था कि क्या आप डेली न्यूज पढ़ते हो। और करंट अफेयर्स तो बहुत वास्ट है, वो तो चलो महीने में 15 दिन में कभी इकट्ठी भी पढ़ी जा सकती है। अभी क्या चल रहा है वो तो डिटेल्ड होती है ना। न्यूज तो बिल्कुल एक लाइन, 1 लाइनर हेडलाइंस बोलते हैं जिसे, वो तो मिस करना ही नहीं है। ठीक है। वो तो बाहर बैठे बैठे आप फोन के ऊपर देख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप न्यूज़पेपर आप नहीं देख पाए तो प्रिंट मीडिया से देखना, आप इसमें देख सकते हो। तो आपको कुछ कम टाइम मिला प्रिपरेशन के लिए, या क्या कारण है कि अभी थोड़ा सा और इस पर वर्क करने की जरूरत है? सर न्यूज़पेपर्स पे नहीं इन जनरल सर ये सेकेंड ही मॉक इंटरव्यू था। हाँ थोड़ा कम भी मिला था, परसों ही मैंने बुक किया था तो आज स्लॉट मिला। तो आपका जो बायोडाटा है ना, उस बायोडाटा में जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, लाइकली क्वेश्चंस हैं, वो आपने खुद बायोडाटा सामने रख के जो भी आपने सबमिट किया, हमारे पास तो जो आपने सबमिट किया वहीं से आएगा, थोड़ा बहुत हम आपसे पूछ के जानेंगे या क्रॉस क्वेश्चन में, तो वो तो आपका तैयार होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सिमरन में कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, झज्जर पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मैम ने पूछा। एंड अभी झज्जर के अंदर आपको बहुत कुछ पढ़ने वाला है, और आजकल तो आप लोग इतने लकी हैं, गूगल है। yes, आप झज्जर पे ही कम से कम 50 पेज पढ़ सकते। होम टाउन तो इट्स मैंडेटरी फॉर यू। होम टाउन, होम स्टेट, थिंक अबाउट झज्जर, और उसका सब कुछ पता होना चाहिए। सब कुछ का मतलब क्या क्या इंडस्ट्री है वहाँ, पर कैपिटा इनकम कितनी है, लिटरेसी रेट कितना है, इकोनॉमी की क्या पोजीशन है, क्या नए इंस्टीट्यूट्स आए हैं वहाँ, और रोड कंडीशंस कितनी है। मतलब यू शुड नो मोस्ट ऑफ इट कि भाई वो आपको मिल जाएगा हरियाणा में या डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी मिल जाएगा, या आप पढ़ना मांगना शुरू करोगे तो गूगल देता रहेगा।
Yes. और वो लगभग ठीक होता है। हमें भी अप्रोक्सीमेशन ही चाहिए होता है, मतलब जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं उनको कौन सा वो पढ़ के तैयार करके थोड़ी आए होते हैं। जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए आपको। Yes. स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जनरल अवेयरनेस तो फॉर एग्जाम्पल वहाँ TDS कितना है आपको मालूम है? वहाँ का पानी आप RO यूज करते हो? Yes, sir. वहाँ पर घर में लगाया, Yes, sir. वहाँ पर बिना RO के आप पानी पी नहीं सकते, Fluoride. बीमार हो जाओगे। सिरसा में और झज्जर में एक्सट्रीम लेवल का, मैं दोनों जगह गया हुआ हूँ, Yes, sir. वहाँ इतना है कि आपके पेट को बिल्कुल खा जाएगा वो। मजबूरी है। आप पता नहीं आप गरीब लोग कैसे रहते होंगे। मुझे लगता है Yes, कोई sir. कैंसर का भी रिलेशनशिप उसके साथ ना हो, Yes, sir. क्योंकि वो अंदर सारी इंटेस्टाइन को खा जाता है। Yes, sir. मैं सिरसा रहा कुछ समय, तो मेरा पेट दर्द करने लग गया। देन आई वेंट टू द डॉक्टर। उसने कहा कि यहाँ पर TDS बहुत ज्यादा है, आप RO नहीं यूज कर रहे। मैंने कहा मैं तो कभी RO यूज ही नहीं किया, मैं तो आई डोंट लाइक इट, भाई इंटरफेरेंस कोई भी। कहता ना यहाँ तो आप बिल्कुल बुरा हाल हो जाएगा। और मैं झज्जर गया, वहां देखा मैंने बाथरूम के अंदर सारे जो मेटल का लगा हुआ है सब जंग लगा हुआ है, Yes, sir. क्रोजन हुआ है। पानी ऐसा है कि वो थोड़ा बहुत पानी लगता है, वो जो स्लैब बनाई हुई है उसकी, मान लो उसके ऊपर जो ब्रश रखने की। मैं कहा यार इनको ये चेंज नहीं कर सकते? वो कहते जी ये तो तुरंत लग जाता है, आते ही महीने में ही खराब हो जाते हैं। People get stones there, no? Gallbladder and kidney. मेरा मतलब स्पेशल चीज कोई पूछी जाए इस तरह जो वहाँ की खासियत है, Yes, तो sir. वो पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि अपना डिस्ट्रिक्ट है आपका और वहाँ का काफी समय से हो आप, इसी हिसाब से तो आप 2-3 जनरेशन से हो। Yes, sir. उसके बाद ऑनर्स मैथ्स सर ने जो सवाल पूछे वो नहीं आप जवाब दे पाए, तो मैथमेटिक्स Yes, में sir. आपके पास कोई बहाना नहीं है, वो भी ऑनर्स। Yes, sir. तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, दोनों एप्लीकेबिलिटी भी यानी प्रैक्टिकल भी, रेलिवेंस एंड सब्जेक्ट के बारे में। और वो कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं था आपको पता? सर इजी था, मेरे को आता था, बट मैं अटेम्प्ट उसका गलत ना हो जाए फिर थोड़ा नहीं सा। तो ये तो है कि कहीं कैसे यू हैव डन ग्रेजुएशन Yes, दैट sir. पर्टिकुलर Okay, सब्जेक्ट, sir. I'll prepare. so you should be fully confident of yourself. ऐसे ही फ्रीलांसिंग कहाँ की है, यू शुड नो Yes, sir. करके आना चाहिए, बिकॉज आपने Websites. लिखा है बायोडाटा में, Yes, sir. तो आपको पता होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं ना, और भूलता नहीं है नॉर्मली, Hmm. तो याद रखो कि कहाँ कंपनी का। देन ब्लॉग्स का ठीक हो गया, रीडिंग का क्या क्या पढ़ा है वो भी चलो आपने 2-3 बता दी। पोइट्री नॉर्मली जैसे बच्चा होता है ना माँ के पास, वैसे माँ होती है पोइट्री का, तो कविता की माँ हो आप, तो वो भूलना थोड़ी चाहिए, वो तो नींद में भी याद आ जाती है। सर मैम ने अपनी क्रिएशन पूछी थी तो वो याद नहीं यही कह रहे करी। हैं। अपनी क्रिएशन तो आप कभी भी Yes, नहीं sir. भूलते हो, दूसरा sir. भूल जाते हो पढ़ा हुआ। What I have written, I will never forget. Okay. But if you say you have written, you have mentioned here, and again at the time of interview you say, I don't remember. It's not the correct answer. Okay. And you know, you need to brush up your knowledge, your academics. And the most important thing which I tell you, your dressing sense. It's not correct. Very striking color you are wearing. Yes, ma'am. But at the time of interview, you shouldn't wear then orange socks. Yes, ma'am. It's, you know, मैम वहाँ पे तो साड़ी पहनेंगे। in sari you are comfortable. Yes, ma'am. If you are comfortable, then you wear it. If Yes. you are not comfortable, और आपकी attention साड़ी में ही रहेगी, it's not correct. No, ma'am. Comfortable So तो if है। you are comfortable, it's okay. Yes, ma'am. So your knowledge level is not up to the mark. Okay. So that's why confidence level is lacking. So you need to brush up your knowledge. Okay. In Haryana, in Jhajjar, सब ने बता ही दिया आपको। इकोनॉमी की बात करते हैं, वो मैथमेटिक्स में मैम इकोनॉमी वाला ठीक था आंसर, कुछ और कर लिखने नहीं, आप मतलब very limited knowledge kind of answers you were giving. Many things could be added. Okay. Yeah. And what I judged, I observed that is you are not prepared today for the interview. Okay. ये बाकी पॉलिटिकल साइंस को भी कर लेना बायोडाटा आपका। क्योंकि sir will tell you. Yeah. Anyway, don't get disheartened. Heaven has not fallen. You will do very well.
थोड़ा सा अभी आपका आ गया डेट कब है इंटरव्यू? सर 2nd Feb. 2nd Feb, तो 5-6 दिन है अभी, Very less time. बस अभी दिन रात लग जाओ थोड़ा सा, इट वोंट टेक वेरी लॉन्ग। आपका बेसिक बैकग्राउंड तो है ही, पढ़ा तो हुआ है आपने, Yes sir. यू जस्ट नीड टू ब्रश अप एंड अपडेट योरसेल्फ, तो वो कर लो थोड़ा, बाकी वो विद फुल कॉन्फिडेंस। और कोई सवाल का आप जवाब नहीं दे पाते हो तो डोंट गेट डिसहार्टेंड या डोंट रिमेन इन दैट क्वेश्चन ओनली व्हेन somebody is asking you the next question. Forget about it. Come to the मतलब be in present. Don't let your mind remain occupied. या वो तो मैं नहीं जा पाई, पता नहीं गलत था या सही था, जो हो गया सो हो गया, बस you must be mentally agile and be with the interview panel. That's more important. झज्जर के हिसाब से आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, इंग्लिश आपकी बिल्कुल ठीक है, आप बिना रुके बिना गलती किए फालतू किए आप इंग्लिश बोल रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। जरूरत नहीं है, हालांकि आप हिंदी में भी बोल सकते हो जहाँ कंफर्टेबल। सर बोला था कि प्रेफरेंस भरवाएंगे तो जो प्रेफरेंस भरेंगे फिर वही उसी में बोल। हाँ, पर वो कोई उसका वेटेज नहीं है। कभी आप सोचो कि भी इंग्लिश बोलने से कोई वेटेज है, बट यू आर कंफर्टेबल, आपका ठीक था। पॉलिटिकल साइंस का भी आप तैयारी करना, हमने कोई सवाल नहीं पूछा है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल है तो इससे पूछा जाएगा सवाल। तो आपका बायोडाटा ये इसकी कॉपी ले लो नीचे, तो ये समझो ब्रीफ है उसका, तो उसके अंदर सारे टॉपिक जैसे झज्जर और आपके झज्जर के बारे में तो थोड़ा होना ही चाहिए, अपने सब्जेक्ट के बारे में मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कंटेंट राइटिंग और पढ़ा क्या क्या है, और पोएट्री, और जो कुछ आपने मेंशन किया हुआ है TEDx वगैरह, हमें ना पता हो बेशक इंटरव्यू लेने वाले को, बट आपको पता होना चाहिए बिकॉज आपने मेंशन किया है एंड यू आर सपोज्ड टू कम विद तैयारी। ओके सर। इंटरव्यू के बारे में ये कहते हैं देयर इज नो हार्म इन लुकिंग टू बी प्रिपेयर्ड। सभी ये उम्मीद करते हैं कि आप तैयारी करके आए। Yes, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऑफ हैंड ही जाएं और कहेंगे जी मैं तो स्ट्रीट स्मार्ट हूँ, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आप तैयारी करके जाएं, लगना चाहिए कि आप तैयारी करके आए हैं, बट बहुत कॉन्शियस और डरे हुए होने की जरूरत नहीं है। सर मैं डरी हुई लग रही थी क्या? नहीं, जब आंसर्स कर रहे थे आप तो आप कॉन्फिडेंट नहीं थे। कॉन्फिडेंट आप जो आंसर जितना बोल भी रहे थे उसमें भी कॉन्फिडेंट नहीं थे कि मैं ठीक दे रही हूँ, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं था। तो 1-2 क्वेश्चन में मुलायम सिंह इसीलिए हम लोगों को ये लगा ना कि आप फिर वो चीजें आपके माइंड में हाँ, इसलिए आप करती रहती है ना कि कि आप मैं रेडी नहीं हो। मुलायम सिंह का नाम ही मुझे भूल गया। हाँ सर वही। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, पर आप पिछले क्वेश्चन में अड़े हुए हो, वो नहीं होना चाहिए। फिर वो लगेगा ना सर इतना बेसिक क्वेश्चन आंसर नहीं अरे किया तो वो उसको भूल जाओ ना, कॉन्फिडेंस जो हो गया सो हो गया, पर उसकी वजह से आगे वाला तो नहीं खराब होना चाहिए ना काम, ओके है सर। कि नहीं? And you select pastel color, whatever you are going to wear, sari or suit, whatever. But साड़ी try to have pastel color, pastel ma'am, it Not is striking green. color. Green. dark green. Yes ma'am, little bit dark, not much darker like. अभी डिपेंड करता है टोन क्या है कलर की, क्योंकि कोई कलर स्ट्राइकिंग लगते हैं, लाइट Okay, ma'am. मीडियम कलर होते हुए कई नहीं लगते। Ma'am with black blazer, it has black border so. Okay, so it's okay if you feel it's a. Otherwise, you should try to wear pastel color, Pastel color. which reflects, on face and it Okay. looks nice. Otherwise, it will. और सर IR वगैरह में तो सर वो तो प्रिपेयर कर ही लिया था। और सर जो आपने क्वेश्चन पूछा था मुझे कोई रिसेंट, मुझे तो पाकिस्तान फ्लड्स ही याद था और तो कुछ याद ही नहीं आ रहा था। नहीं, अभी UN में कॉन्फ्रेंस हुई थी ना पाकिस्तान फ्लड्स के ऊपर ही, यस सर। या था ठीक था, तो उसके ऊपर नहीं ऑलमोस्ट हाँ, 9.8 बिलियन सारी कंट्रीज ने प्लेज किया यस सर। और सर वो बेल आउट दैट के इज लिए भी क्लाइमेट गए फाइनेंस ओनली। थे। यस सर, वो बेल आउट के लिए भी गए थे क्योंकि वहाँ पे एनर्जी क्राइसिस बहुत चल रहा है। हाँ, वो दैट इज सेपरेट थिंग। Yes, अभी sir. स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस ओनली अच्छा। अंडर द एजेस ऑफ UN ये Yes, भी sir. मीटिंग हुई थी पिछले। यस सर, मैं रिलेट करने वाली थी, फिर मुझे लगा शायद मैं गलत हो नहीं, ये मत सोचो ना, यस सर। ये मत सोचो, यू बी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर Okay, sir. थिंकिंग। ओके सर, ठीक है, Okay, Simran, all the best. थैंक यू From our side, wish you all the best. थैंक यू मैम। और इंटरव्यू कोई ये नहीं होता कि आप उसके अंदर ही सिलेक्ट या रिजेक्ट होंगे।
आपके अपने मार्क्स है। Yes, sir. मैथमेटिक्स हो सकता है बहुत स्कोरिंग है तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स हो। नहीं सर, ऑप्शन तो ह्यूमैनिटीज था। साइंस है, हाँ। यस सर, ठीक है। बट सर पेपर तो ठीक ही गए थे मतलब। तो you हाँ, must have done well there. हाँ। तो that will compensate. तो अपनी तरफ से मेहनत करके fully prepare और confidence से जाओ. You will crack it. Don't worry. थैंक यू सर।